Good morning, dear students. Today we will start chain rule. This is page number 164 from NCERT. I have written and I will go for exercise number 5.2. Try to understand what is chain rule. It is for composite functions. See, look here. If u is equal to fx and y is equal to fu, so y is a composite function because u is fx. U is function of x and y is function of u. So how to find dy by dx? Suppose I have to find dy by dx. Look here, u is function of x, then I can find du by dx. Here y is function of u, I can find dy by du. What is dy by dx? Dy by dx, let us multiply du by dx into dy by dx. This will be dy by dx. This is called a composite function. Let us move for the example. If I see for the examples, look at these examples. Sin x square. Sin x square is a composite function. Sin function is here and x square, quadratic function inside the sin function. How I will find this d by dx of sin x square? See, look at this. I will write y is equal to sin x square. Now what is u? See, look here, x square. Sin function is composite function of this x square. Then dy by dx is, I will write, please follow this only, you will write, this will be the method to write it. And then now see, this is sin function. Then do first is differentiation of the sin function. This is u cos x square. Now you have not done till now differentiation of this x square. You will write d by dx x square. This is cos x square into 2x. The answer is 2x cos x square. Let us move for another question. Another is y is equal to tan 2x plus 3. tan 2x plus 3 में यहाँ देखो जरा. अब क्या करोगे? कौन सा फंक्शन है? u, tan फंक्शन. बाकी आपको कुछ नहीं लिखना. tan फंक्शन है. अब क्या लिखोगे? dy by dx is equal to, पहले तो नो हाउ टू राइट. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इसे लिखते कैसे हैं. दिस इज द मैथड टू राइट. ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे ही होता है. अब u कौन सा फंक्शन है? tan फंक्शन. tan फंक्शन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? sec स्क्वायर. आई विल राइट sec स्क्वायर. दिस x इज 2x plus 3 एंड tan के बाद व्हाट इज दिस फंक्शन कंपोजिट किसका बना था? इसका, जिसका आपने डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं किया उसको ऐसे लिखिए. अब ये हो जाएगा sec स्क्वायर 2x plus 3 साथ में 2, बिकॉज इस 3 का आपको 0 होता है और x का 1 होता है. ये आपको आता है सपोज 11th क्लास से. We will go for some other examples. Some other examples. Sin cos x square मैंने लिखा हुआ है sin cos x square. इस एग्जाम्पल को करते हैं. sin cos x square. y is equal to लिखना sin cos x square. 3 फंक्शंस, sin फंक्शन है, cos फंक्शन है, x square. राइट डाउन dy by dx is equal to किसका कंपोजिट, किसका फंक्शन बना है? साइन का. साइन का फंक्शन बना होगा तो आप लिखोगे ये cos. इस वाले पार्ट को आपने कंपोजिट फंक्शन वाला पार्ट माना है तो आप ऐसे ही लिखोगे. देन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट कर चुके हैं? साइन फंक्शन. बचा कौन सा? dy by dx लिख दो. जिसका अभी तक आपने नहीं किया, देखो हमने साइन का किया था, cos किया. अब ये वाला पार्ट बचा था cos x स्क्वायर. फिर से यहाँ क्या है? cos फंक्शन. cos फंक्शन है, दिस इज cos x स्क्वायर और साथ में माइनस cos x का होता है माइनस sin x स्क्वायर. अब कौन सा फंक्शन बचा? x स्क्वायर. अब लिखोगे dy by dx ऑफ x स्क्वायर. ये 3 फंक्शन से कंपोजिट फंक्शन बना था. cos x स्क्वायर इनटू में माइनस sin x स्क्वायर एंड साथ में दिस विल बी द आंसर. Here it is one more question. Sec tan square root of x. This is another one.
not these two together. This is different question and this is different question. Let me solve this. dy by dx, let me write dy by dx, d by dx of y. This is equal to d by dx of sec tan square root of x. Now look at this. सबसे पहले क्या है, sec है ना. बाकी आप ऐसे इसको बंद कर दो, जिसका भी ये कंपोजिट बना हुआ है इसको आप हाइड कर दीजिए, हाइड दिस वन. sec tan. अब इस sec का होता क्या है, sec x tan x. दिस इज इक्वल टू, आई विल राइट sec जो मैंने हाइड किया था ऐसे ही रहेगा, tan जो मैंने हाइड किया था उसको मैं अभी थोड़ी देर में लिखूंगी. देन किसका मैंने कर लिया था, sec का. आई हैव नाउ tan square root of x. नाउ राइट हियर, जो हाइड किए थे वही आएंगे इसके अंदर. दिस वन अगेन d by dx of tan square root of x. इसे हाइड करो, हाइड कर लोगे तो ये sec tan square root of x, tan square root of x एंड ये है tan का कितना होता है, sec square root of x, क्योंकि ये वाला पार्ट आपने हाइड किया था. बचा किसका, d by dx of square root of x. See what is the concept behind this. आप जो भी फंक्शन लेते हैं, एक फंक्शन लीजिए बाकी हाइड कर दो. सेक मैंने लिया, ये हाइड कर दिए. अब सेक की टर्न हो गई थी, इस सेक की टर्न हो गई थी तो जो हाइड किया था वो वाला पार्ट बचेगा. एंड दिस वे दिस विल कंटिन्यू. इसका तो आपको आता ही है, यू कैन राइट 1/√2x. एंड लुक फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत प्यारा बच्चों, सी लुक एट दिस. ये मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप लिखोगे y इज इक्वल टू, ये क्या है, y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, u इंटू v, टू फंक्शंस को मल्टीप्लाई किया. ये कंपोजिट नहीं है यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पर आप बहुत मिस्टेक करते हैं, ये कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये u इंटू v टाइप है, u इंटू v और साथ में कंपोजिट. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. d by dx of y इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, u, तो आता है ये u d by dx of v sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 d by dx of cos x cube. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये x क्यूब, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे. देखो, दिस इज व्हाट d by dx of, ये है sin x to the power 5 का भी होल स्क्वायर है. आपको आता है sin स्क्वायर थीटा का क्या मतलब होता है, sin थीटा का होल स्क्वायर. दिस इज नॉट इक्वल टू व्हाट, sin स्क्वायर थीटा स्क्वायर, ये नहीं होता है, ये होता है. और इसे अभी ऐसे लिखो, प्लस इसको तो हम डिफरेंशिएट कर देंगे, sin स्क्वायर x to the power 5. अब इसमें ये कंपोजिट फंक्शन फिर से cos के साथ जो है उसको आप हाइड कर दो. x2 को मैंने हाइड कर दिया, आपको दिख रहा होगा, x2 हाइड कर दिया. फिर क्या दिख रहा है, cos फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है sin फंक्शन, sin x क्यूब, sin x क्यूब. और क्या पार्ट बचा था, d by dx of x क्यूब, ये पार्ट बचा हुआ था. ये cos x क्यूब एंड नाउ हियर इस पूरे को हाइड कर दो, क्योंकि इसका कंपोजिट फंक्शन है, इसको हाइड कर दोगे तो 2 एंड इस पार्ट को -1. आपको आता है, क्या आता है, आपको क्या बता रखा है, d by dx of x to the power n is n x to the power n -1. इस फंक्शन की बात देखो, ये फंक्शन है 2 इंटू इसकी पार्ट 2 -1. अब बचा क्या, किसकी टर्न हुई थी, इसकी टर्न हुई थी, ये तो पूरा बचा ही, इसका तो अभी तक कुछ किया नहीं. एंड ये सॉल्व हो गया है, इसे आप एज इट इज लिख लोगे, इसको आप लिख लेना, डोंट फॉरगेट टू राइट इट 2. एंड इसके अंदर ये कंपोजिट फंक्शन आप, ये हो जाएगा 2 sin x पावर 5 एंड अगेन ये x की पावर 5 sin का फिर से cos x की पावर 5, फिर बच जाएगा आपके पास x की पावर 5 प्लस वाला, ये पूरा आप लिख लोगे क्योंकि ये डिफरेंशिएट हो चुका है. और इसके अंदर आप ये लिख लेना cos का, यहाँ पर x की पावर ये लिख लेना, बाकी ये नीचे कंटिन्यू कर लोगे. आप कैसे कंटिन्यू करोगे, ये होगा माइनस, ये पूरा लिखना पड़ेगा, sin स्क्वायर x की पावर 5, ये पूरा लिखना पड़ेगा, माइनस sin x क्यूब और साथ में 3x स्क्वायर, ये सब लिखना पड़ेगा. यू ब्रैकेट
नाउ इट्स ओके, अब ये कंप्लीट हो गया. दिस इज द आंसर. एक्स की पावर 5 का 5x टू द पावर 4 आएगा. ये पूरा 5x टू द पावर 4 एंड दिस होल. नाउ यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज.